So my first question is for all of you, and we can start from Surekha ji. So when we talk about women building the nation, what does the phrase personally mean to each of you? Thank you so much, Charu. It's my privilege to be the part of this Value of Word session 2025, and my heartfelt thanks to Dr. Sanjeev Chopra. Uh, on the occasion of this Value of Word, we all gather here and exchange our views and attend different sessions of authors, critical thinkers, activists, social worker. So it's really a event we all wait for. And this session is very interesting session this time. Beyond the authors and beyond the books, you have arranged this session to discuss about women. So first of all, I congratulate that we are here celebrating the 100 years of Gaura Devi. So the spirit of that lady is the best answer of your question. When I went to US in the classrooms, Gaura Devi was there as a case study because we all are studying, Professor Jayvanti Dimri is here, ecofeminism and feminism, the gender theories and lot of other, difficult thing, Marxist gender theory. And then we have our Oriental gender theory. But when we see that illiterate woman is there in the classroom of the most developed country called USA, and people are asking questions. I was there and they are asking who was Gaura Devi, where she was educated, what was her qualification. And I just told her that she is simply a Uttarakhandi lady, and she got the answer of saving the trees from the heart, and Uttarakhand is known for women empowerment. So building the landscape of women empowerment or landscape of the national strength of women, I can say that women from this part of the nation is having a DNA of a strong woman. So we have thousands of examples like Gaura Devi, and I can say that if we are building the nation through our universities, yes, we are, but the women who are in the villages in our country, originally building the landscape of women empowerment of our nation. Very well said. Thank you so much. I echo each word of Surekha Dangwal ji. Thank you, sir. आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ बैठे हैं. Shalini, thank you so much. And Charu, answering your question, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी. We are 50% of the population. Nation building comes to a stall if this 50% is not included. And the rest 50% is brought up by us. The men are born of a woman and they are brought up by a woman. So that 50% just forgets about the women. That is something which has to be included, and inclusivity is very, very important in nation building. And जब तक एक महिला का सहयोग या उसकी हर डिसीजन मेकिंग में जब तक एक महिला को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे. बस हम नेशन बिल्डिंग में इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं. So true, so true. So I think, thank you, Sanjeev ji. We have had our journey through our children's school. Our children, boys were batchmates. And Charu, thank you for inviting us. She's the immediate past president, so it may be sounding you scratch my back and I scratch yours. And thank you all the audiences for being here. Everything that she said, it is in our DNA, and you cannot exclude women if you want a nation which is developed nation. And to top it all, it's surprising that we at all talk of or think of
Because in our systems, in our culture, in our Sanskriti, in our Vedas, everywhere the women power is well established, well defined, and well illustrated, you know, by examples, by deeds. And जहाँ शिव भी शक्ति को बाव करते हैं, उस देश में, उस धरती पर हमें आकर क्या रोल होना चाहिए, ये सोचना आई थिंक हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं रह जाता है. हाँ, हम जो भटके थे, जहाँ कहीं हम बीच में वेलेड हुए थे, अब वो राह वापस पकड़नी है और पकड़ रखी है. इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं. एंड लेट ऑल ऑफ अस क्लैप टू सेलिब्रेट द विमेन हेड ऑफ इंडिया. भारत की संस्कृति और भारतीय नारी के लिए हम सब लोग पहले ही कमिटेड हैं. अभी आपने जैसे जिक्र किया हमारी वेद संस्कृति, तो हमारे यहाँ तो पूजा भी बिना स्त्री के, मतलब आपकी बेटर हाफ के कंप्लीट नहीं होती. हमारे यहाँ पूजा में भी आपको याद होगा, अगर रामायण पढ़ी होगी, कि सीता जी क्योंकि वहाँ पर थी लव कुश के साथ, तो जब उन्होंने यज्ञ किया रामचंद्र जी ने, तो सोने की सीता बनाकर बिठाया गया, क्योंकि कुछ भी बगैर you are never complete without a yes. woman is the message very deeply entrenched in everything that is Bharatiya. So, Dr. Geeta, you have worn so many hats: doctor, hospital founder, NGO leader, Child Rights Commission chairperson, FICCI Ladies chairperson. How do all these roles come together when we talk about nation building through women's leadership? एंड मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इतने सारे रोल करते हुए आपके परिवार में कुछ हलचल रहती थी, कैसे आपने दोनों चीज़ें वो संभाली, प्रोफेशनल एंड वर्क लाइक बैलेंस लाइक? So I think when you mentioned my hats, you forgot, though you have mentioned family, but in a different context. So you forgot my most flamboyant hat that I've worn, and I think I've given more than 40%, or might be 60% or more of my time to my family. So that's the hat I wear most proudly. That's the hat that has given me satisfaction. And all these other hats that you have talked about are, I think, auxiliary to that. Because raising that family, staying committed, you know, instilling that value system, being there as a professional long ago, because I was a doctor, and you know, we would be working amongst professionals most of the conferences, and pediatrics, मैं बच्चों की डॉक्टर थी, तो पेरेंटिंग की जब भी बात होती थी, तो बहुत सारी महिलाएं कहती थी कि yes, I give quality time to my children and I make sure. But let me tell everyone present in this hall, as a mother, as a doctor, and as a social entrepreneur, that it is the quantity time that matters for the family. To stay, you know, to keep those straying young minds cohesive, you need to be there. And why I'm stressing on this, because I see so many young girls sitting here. The message is, even if you have been there, you can be here. You know, it doesn't act as a barrier. So wearing all those hats along with your family responsibilities does not pull you down. It only gives you buoyancy, the family support, the family achievements. You know, today, like soon after my session, I think my son is going to be here, he's the younger son. And few days before, in another literature festival, my daughter-in-law was a speaker. So that gives you the real buoyancy, and that is real achievement. So there has never been a conflict. And when you talk of child rights and health, I think these hats were woven. You know, ताना बाना ना, धागे में जैसे हम बुनते हैं, बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। ताना एक बाना है. हेल्थ के बिना बच्चों के राइट्स कैसे होंगे, और बच्चों के राइट्स के बिना उनका हेल्दी जीवन कैसे होगा. तो मैं तो पीडियाट्रिशियन थी, और ये चाइल्ड राइट्स एनजीओ, and I think entrepreneurship comes through the genetics. My father was an industrialist. Great. So, Surekha ji, next question is for you. Like, education is often called the foundation of a nation. As a vice chancellor, how do you see women educators and students shaping India's future intellectually, socially, and morally? Yes, it is always there that if you educate a man, you educate a man. If you educate a woman, you educate generations.
So it is always there that universities are the fountain of not only empowering women, but empowering youth and shaping their mind, shaping their future, shaping career. But when we talk about women, as Dr. Geeta said, I agree with her in the sense that अगेन बिकॉज संजीव जी मेरे सामने हैं तो आप ये मत सोचिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन ये थॉट आना कि एक सेशन रखें और नेशनल बिल्डिंग में वुमन का रोल रखें, आप बायस भी हो सकते थे द रोल ऑफ मैन इन नेशनल बिल्डिंग लेकिन आपने ये देखा कि एक नेशन नहीं बन सकता अगर वुमन एजुकेटेड नहीं है, और उसका योगदान उसको शेप कैसे करना है। जो गीता जी ने कहा, जो वुमन ने, मैंने उत्तराखंड कॉन्टेक्स्ट से बात शुरू की थी कि क्या कारण है कि जितने भी आंदोलन हुए, एक सेपरेट स्टेट में हम यहाँ बैठे हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय जो मेरा विश्वविद्यालय पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, उसका आंदोलन भी जिन्हें हम कहते हैं हम पढ़े लिखे और वो अनपढ़, उन्हीं अनपढ़ महिलाओं ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, और उसी के आउटकम से आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो हमारी महिलाओं ने, हमारी दादी ने, हमारी नानी ने जो संघर्ष किया, उसके कारण मैं यहाँ हूँ। क्योंकि पहाड़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज है कि मेरी उम्र की महिला फर्स्ट वर्किंग वुमन हो, और बहुत कम वुमन रही होंगी मेरी मदर एज की जो वर्किंग थी पहाड़ के रेफरेंस में। तो उनको वो स्ट्रेंथ देना, और फिर हिमालय को बचाना हो, क्लाइमेट में वी आर टॉकिंग अबाउट गौरा देवी एंड हर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा महिला मंगल दल 27 महिलाओं का, जिन्होंने साइमन कंपनी को ये फोर्स किया कि आप पेड़ नहीं काट सकते, और उस समय जो माहौल था उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसकी परवाह नहीं की, और एक उद्घोष जो पूरे विश्व को दिया कि जंगल मेरा मायका है और इसका प्रोटेक्शन करना मेरी ड्यूटी है। ऐसी आपका तिल्लू रौतेली है, और बहुत रानी कर्णावती हैं, और मॉडर्न टाइम पे भी बहुत सी ऐसी चिपको मुँह में ऐसी लड़कियां हैं जो कि बहुत बड़ी उद्यमी बनी हैं। और एक हमारे श्रीनगर में एक लड़की है जो चाय बनाती है, और अब उसने कोई एग्ज़ाम पास कर दिया और वो चाय बेचती है, और बीए भी कर रही थी, एग्ज़ाम भी पास कर दिया, और अपना उसने सेटअप भी किया। जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जो देश के रेफरेंस में भी जो महिलाएं थी, जैसे हंसा मेहता पहली वाइस चांसलर थी बड़ौदा यूनिवर्सिटी की, एंड way back in 1865, and when we talk about western feminist movement, means I'm not criticizing, because ultimately they also sensitize the women movement, the women strength, चाहे second sex को पढ़ना हो 1945 में, या फेमिनिन मिस्ट्री को पढ़, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो रिवोल्यूशनरी थी पूरे वर्ल्ड में। सिस्टरहुड इज़ ग्लोबल का एक क्लैरियन कॉल था कि हम सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, लेकिन उससे हट के मुझे लगता है कि जो स्वाभाविक तरीके का विमेन एम्पावरमेंट है, जो स्वाभाविक तरीके की महिला की आवाज़ है, जो हमारे समाज और संस्कृति ने जो शक्ति हमको दी है, जो शिव और शक्ति की गीता जी ने बात की, जो हमारे डीएनए में है, बहुत ही स्वाभाविक। और 1945 में हंसा मेहता को यूएनओ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट में बोलने का मौका मिला था 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे तो दिसंबर में उनको बुलाया गया था। ये सारी वॉइसेस हैं जहाँ पे हमने कमाल किया स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर, और हम अहिल्याबाई होलकर जी का 303 शताब्दी वर्ष भी इस समय मना रहे हैं, और उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनके ससुर का उन पे विश्वास। तो जब हम महिलाओं का एम्पावरमेंट भारत के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो वी कैन नॉट लीव द फैमिली असाइड, और हमारा एक होलिस्टिक है। यानी अगर मुझे कभी महिला सशक्तिकरण में काम करने की ज़रूरत हुई या मुझे कोई सहयोग की ज़रूरत हुई तो मैं संजीव चोपड़ा जी की ओर देख सकती हूँ। इट इज़ नॉट लाइक स्टैंड अलोन वुमन आइडेंटिटी, वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम वुमेन आइडेंटिटी। हम इतने ओवर आइडेंटिफाइड हैं अपने घरों में कि किसी के दादी हैं, किसी की नानी है, किसी की ताई है, किसी की चाची है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, माँ है।
तो जो फेमिनिज्म था वो बेसिकली आइडेंटिटी रिलेटेड था, फोकस था, हु एम आई, व्हाट माय बॉडी स्टैंड्स फॉर, मुझे ये, तो वो स्टैंड अलोन सा हो गया और जो हमारे पुरुष सहयोगी हैं उनसे कट गया। उस कारण वो एक एसेंशियलिस्ट टाइप के ट्रैप में फंस गया वो वुमन मूवमेंट। और इसलिए आपने देखा होगा इंदिरा जी को पूछा जाता था आर यू ए फेमिनिस्ट, उस समय फेमिनिज्म का बहुत ही बड़ा उफान था और उन्होंने कहा नो आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। सो व्हाट वाज दिस वर्ड व्हेन ऑल द ग्रेट लेडीज ऑन द stage denied that they are not feminist? That means that they are doing something for empowerment of women, or maybe they are working despite having all the struggles, all the odds of life, all the odds of the society. उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो अपने को कहीं पे उनका एक नाम हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने पूरी सोसाइटी को साथ में चल के, और मैं अपने बच्चों को कई बार एग्जाम्पल देती हूँ कि हिंदुस्तान में तो आइडेंटिटी का ये हाल है कि अगर आपकी 90 साल की दादी भी है और उसको बोलो दादी अब आपका समय हो गया, तो वो भी कहती है, वो जो 4 पैरों से क्रॉल करता हुआ बच्चा होता है, कहती है बस इसकी शादी देख लूँ तो उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी। तो वो जो जीने की ललक है, जो वाइब्रेंसी है, जो लाइफ के लिए एक उत्सव धर्मिता है, सब लोग बैठ के अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग वुमनहुड है जो हमारे यहाँ, सेलिब्रेटिंग फैमिली है जो हमारे यहाँ, वो मुझे लगता है कि हमारे डीएनए में है और उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी कोई चीज़ नहीं है। और वहीं आप यूएस में देखते हैं 1950 के बाद 2 वर्ल्ड वॉर हुए और सुसाइड लिटरेचर चल पड़ा कि हेमिंगवे को नोबेल पुरस्कार मिला, उसके बाद उसने सुसाइड कर दी। और हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल है जब महिलाओं ने एक मुकाम प्राप्त किया, पुरुषों ने भी, और उसके बाद कहा दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर लिविंग, नॉट फॉर, इट्स नॉट वर्थ लिविंग टू बी हियर, टू बी द पार्ट ऑफ दिस कॉस्मॉस, टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, सो इट इज़ बेटर टू कमिट सुसाइड। सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर इस समाज को जीने योग्य बनाया है, अगर परिवारों में कोई वाइब्रेंसी आई है, अगर ये उत्सव धर्मिता जो आज प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात में कह रहे थे कि ये पूरा उत्सव तो पूरा अक्टूबर चला गया, अब हम छठ का उत्सव भी मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, तो ये जो उत्सव धर्मिता है इसके केंद्र में भी महिला है। महिला है तो वाइब्रेंसी है, महिला है तो लाइफ है। और जो यूनिवर्सिटी, जो इंस्टीट्यूशन, बल्कि जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, जिसमें मैं अपने को भी इंक्लूड करती हूँ, कि हमने कहीं ना कहीं वेस्ट से प्रभावित होकर इक्वालिटी के नाम पे अपनी बेटियों की उस वाइब्रेंसी और उस ताकत को ख़त्म किया है। हमने कहा कि आप इक्वल है, मतलब भाई अगर बेड में पड़ा पड़ा चाय मांग रहा है तो आपको भी मांगनी है, क्योंकि आप इक्वल है। अगर मैं आपको ये कहती हूँ चाय आपको खुद बनानी है, तो आपने बेटी को ये सिखा दिया कि भाई नहीं बना रहा तो मैं क्यों बनाऊं, एंड यू फील दिस इज इक्वालिटी। ये इक्वालिटी नहीं है, ये आप कमजोर हो गए बहुत ज़्यादा। और जब आप सेंटर ऑफ द फैमिली है, सेंटर ऑफ द फैमिली, द होल फैमिली रिवॉल्व अराउंड यू, इट मेक्स यू पावरफुल। ये केवल जो स्टैंड अप इंडिया के आंकड़े चारू जी आते हैं कि मोर देन 70% वुमन को लोन मिला है स्टैंड अप इंडिया में, SC ST और वुमन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको बनाया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाया यूनिवर्सिटी, आफ्टर हैविंग एजुकेशन, दैट इज़ मस्ट, दैट इज़, वी आर नॉट एट ऑल डिनाइंग दैट, सब गौरा देवी नहीं हो सकती कि वो इतना बड़ा काम कर सकें, लेकिन ये एजुकेशन वुमन की बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 1792 में जब वेस्टर्न मैरी वुलिस्टोनक्राफ्ट अपनी पहली किताब लिख रही थी, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, उस समय तक तो अहिल्याबाई होलकर ने मालवा का साम्राज्य कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। सो व्हाट आई मीन टू से दैट इफ वी वांट टू कॉपी, और हमें लगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, आज आप देखिए CSIR की पहली DG 85 ईयर्स में वुमन है। और चारू जी, इस बात की भी यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए कि ये जो समय है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन एक्ट के तहत उन्होंने कहा है कि डिसीजन मेकिंग में वुमन होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में वुमन होनी चाहिए। और हमें लगता है कि MLA की वाइफ आएगी, MP की वाइफ आएगी, कब तक आएगी?
we all are very aware about it now. The youth is very aware. वो परिवारवाद का विरोध करता है, वो लेगेसी एक बनी रहे उसका विरोध करता है, वो अपने राइट को जानता है. तो निश्चित रूप से ऐसे जो एक्ट है, स्टैंड अप इंडिया है और स्टार्टअप इंडिया है, और इवन स्टेम जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, उसके आंकड़े भी अराउंड 30% लड़कियां, एक ज़माने में 4% टेक्नोलॉजी में थी, आज अराउंड 30% यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करती हैं. तो ये जो आपने क्वेश्चन किया उसके बेस से हम इस क्वेश्चन को अगर शुरू करें कि वुमन अगर एम्पावरमेंट का सही अर्थ समझ जाए, तो ये जब जब देश पे संकट आया, आपने नेशनल बिल्डिंग इसका रखा है, चाहे वो झांसी की रानी हो कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी किसी भी कीमत पे, तो ये तो श्योर है कि टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे CSIR में कलाई सिल्वी उसकी 85 साल में पहली साइंटिस्ट बनी है जिन्हें सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना होता है, और जो आपकी 38 लैब्स को, जिसमें एक हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी है, ऐसी 38 लैब्स की वो हेड है. और साइंस किस दिशा में जाएगा ये कलाई सिल्वी जी के नेतृत्व को, उनके वैज्ञानिकता को डिसाइड करना है. सो व्हाट आई मीन टू से, आइदर इट इज एयर फोर्स और इट इज आर्म फोर्सेस और इट इज साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज, अब जो ये टाइम है ये विमेन एम्पावरमेंट से विमेन लेड एम्पावरमेंट, नेतृत्व महिलाओं को देना पड़ेगा. वेरी नाइस. और उन पे विश्वास करना पड़ेगा, जैसे संजीव जी ने विश्वास किया कि हम बोलेंगे और नेशनल लैंडस्केप पे बात होगी तो निश्चित रूप से कोई अच्छी बात होगी कि कैसे वुमन बेटर नेशन बना सकती हैं, पावरफुल नेशन बना सकती हैं. उन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, उनको आपको इंस्टीट्यूशन सौंपने पड़ेंगे, और उनके नेतृत्व में जो काम होगा वो निश्चित रूप से डेडिकेशन से होगा, ईमानदारी से होगा और सक्षम नेतृत्व होगा. जी, तो जी. नेशनल लैंडस्केप डिफरेंट होगा. सुरेखा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही. और सबसे जो एक और मुझे आपकी बातों में एक पॉइंट जो मुझे भी लगता है कि अपब्रिंगिंग ऑफ आवर गर्ल चाइल्ड, थोड़ा सा हमें बैलेंसिंग सिखाने की ज़रूरत है. कि वो बात है कि इक्वालिटी के नाम पर हम ये नहीं कर सकते कि जो आपने कहा कि आप भी बिस्तर में चाय मंगाना शुरू कर दें, तो वो भी थोड़ा हमारी ध्यान देने की बात है. सो वेणु जी, यू हैव वर्कड अक्रॉस लॉ, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉजेज, ऑल पिलर्स दैट शेप अ नेशन. How do you see women lawyers and activists influencing law, politics and accountability in today's India? I would start by saying that behind every successful woman, या behind every person, नहीं woman की ही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, एक visionary father होते हैं, एक supportive husband होता है और एक supportive family भी होती है. I studied law because जब मैं BCom कर रही थी तो मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने लॉ कंप्लीट किया. मेरे फादर भी लॉयर थे बट बिजनेसमैन बने. बट मुझे लॉ में इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने लॉ प्रैक्टिस करके शुरू किया, फिर नहीं कर पाई आगे. फिर मैं एक्टिविस्ट बन गई, मैं राइटर बन गई. अब टुडे मैं आज के आंकड़े आपको बताऊं, 15.3% लॉयर्स इंडिया में फीमेल्स हैं. Wonderful. आई डोंट नो इट इज़ कॉल्ड वंडरफुल और नॉट, इट्स नॉट. सिर्फ 15% लॉयर्स होना ये अचीवमेंट नहीं है, अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है. 25% महिलाएं राजनीति में हैं, सिर्फ 25%. जब हमारे इतने दिनों से बिल आ रहा है कि हमें और मतलब औरतों को और आगे बढ़ाया जाए. वाई इज इट हैपनिंग? हमें एम्पावरमेंट तो चाहिए, हमें इंक्लूसिविटी भी चाहिए. हम राइटर इसीलिए बन गए क्योंकि मैं फिर इनको लिखना चाहती थी कि ये क्यों ऐसे हम लोग पीछे होते जा रहे हैं. ये एक इसमें हम एक इंक्लूड करेंगे पेट्रियार्की. अभी भी हमारे देश में बहुत घुसी हुई है, बहुत जम के घुसी हुई है. हम अभी भी कई इसको हम हिपोक्रेसी बोलें, पेट्रियार्की बोलें, कई बार एक हमें जो चॉइस मिलती है वो लड़कों को ज़्यादा मिलती है, लड़कियों को कम मिलती है.
उसी में एक रोल आता है माइंडसेट का, एक फादर का, एक हस्बैंड का, कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम्हें रोका ना जाए इसलिए तुम आगे बढ़ो। कई औरतें रिबेल बन के आगे बढ़ जाती हैं। वाई डू वी नीड टू ब्रिंग दैट वुमन टू दैट थ्रेशहोल्ड कि तुम रिबेल बन के आगे बढ़ो? हमें एक इंक्लूसिविटी में बस वहीं पे फादर, हस्बैंड और बेटे का रोल चाहिए कि हमें आगे बढ़ाओ। जैसे गीता जी ने बोला, उनको मुझे खुशी हुई जब उन्होंने अपनी बहू का नाम बहुत प्राइड से लिया कि उसको, दैट इज़ द इंक्लूसिविटी वी वांट, कि हमें बेटी को और अपनी बहू को भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर आगे बढ़ाएं। इसी पे ही हमें अपना केस रेस्ट करना चाहिए कि हमें हर चीज़ में इंक्लूसिविटी चाहिए। सो गीता जी, ऑन अ लाइटर नोट, मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर पेशेंस, बट टेल मी ऑनेस्टली, हु टेस्ट यू मोर, toddlers in your clinic or government department when you work as child right commission chairperson? No, no, don't ask that. Toddlers in the clinic के लिए ना उनके parents होते हैं, even if they are testing your patients, you know. In fact, most of the times हम बोलते हैं कि नहीं, let them be, you know, they are children. When जब माँ कहती है ना, don't touch this, don't touch that, and that's a message I would like each one here to know कि पैदा होते ही बच्चों को manners मत सिखाइए. Don't let them belittle the value of no, you know, like छेड़ना, सामान तोड़ना. And it's a very personal thing, might be a little off, but I would like to, because ये बात हो गई तो मैं एक story सुनाना चाहूँगी कि अगर कभी मुझे अफसोस आता है अपनी parenting पे कि where I went wrong, you know, by this age you start reflecting कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी होगी. तो एक इंसिडेंस जो मुझे सबसे ज़्यादा पिंच करता है कि उस दिन तो मैंने बहुत गलत किया, वो था कि द वॉल्थर ग्लास, यू नो, आज से 15 साल पहले बड़ा प्रेस्टीजियस माना जाता था और मैं अपनी उतनी डीप पॉकेट्स भी नहीं होती थी, तो मैं काफ़ी अपने दिल पे पत्थर रख के एक वॉल्थर का ग्लास वेस लाई और मैंने आके उसे अपने लिविंग एरिया में रख दिया. और शाम को ही मेरे बच्चे इंडोर क्रिकेट, ITC कहते थे वो, रुमालों का बॉल बना के वो इंडोर क्रिकेट दोनों बेटे खेलने लगे. और इंडोर क्रिकेट में कॉपी यूज्ड टू बी द बैट एंड रुमाल का वो बॉल होता था. तो बैट चला कॉपी का और वो वॉल्थर धराशायी हुआ, और जितनी तेज़ी से वॉल्थर गिरा उतनी तेज़ी से मेरा हाथ मेरे बेटे पे गया और मैंने उसको एक चांटा मारा कि क्या करा तुमने, इतना एक्सपेंसिव था, इतना सुंदर था. एंड यू नो, लाइक ऑब्वियसली ही वाज क्राइंग एंड व्हाटएवर. बट आज अगर मुझे अपनी किसी हरकत पे बहुत शर्मिंदगी है या अंडू करना चाहती हूँ तो मैं अपने उस एक एक्शन को, बिकॉज गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैंने लॉबी एरिया में लाके वो वॉल्थर सजाया. सो दैट्स द मैसेज फॉर एवरी गर्ल, एवरी वुमन, एवरी पेरेंट टू नो कि बच्चों को नो कहने की एक उम्र है और मैनर्स सिखाने के लिए समय है. हम पैदा होते एक तो क्लोज्ड स्पेसेस हो गई हैं, ना लॉन है घरों में, यू नो, और फिर हमने घरों को भी म्यूजियम बनाने का थोड़ा होड़ सी ले रखी है. तो हम उसको पैदा होते ही कह रहे हैं नो नो, डोंट टच दिस, डोंट डू दैट. अब डॉक्टर की क्लिनिक में आता है ना बच्चा, तो वो चाहे टेडी छू के इधर से उधर रख रहा हो हमारा, तो मदर कहती है डोंट डू, नो नो, डोंट टच. भी करेगा ना, एक्सप्लोर करना तो बच्चे का अधिकार है, उसकी सोच का उद्बोध है. सो टॉडलर्स हैव नेवर बीन अ टेस्टिंग टाइम, बट ऑफ कोर्स प्रशासन और शासन पे मैं यहाँ बैठ के कमेंट ही ना करूँ. सामने एक पूर्व IAS बैठे हैं. बट जैसे मैंने अभी पहले कहा कि यू वेयर सो मेनी हेड्स, तो इफ यू हैड टू पिक वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू टुडे, व्हिच वुड बी दैट? Oh, the way I am, including all of them, because I think they each cover a portion of my head, and I'm very proud of the whole crown that I have as a mother, as a mother-in-law, as a wife, as a daughter, you know, the legacies, everything. But of course, I can't belittle my own institutions, you know, besides my children, my institutions are my baby. And they're so dear and important to me because they feed so many, because they are part of the national building. Because like if there are, there was a time, like at one point when I decided to move out of the hospital, I said, चलो समर्पण का ना ऑफिस, because वो तो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है ना, so I said अब समर्पण को हैंड ओवर कर देते हैं, बंद करते हैं.
So my next in the command said कि मैम ये तो बहुत selfish हुआ, because हम जो ये 7 लोग permanent इस office में बैठे हैं, आपने अपना way forward सोचा, and that was not after the commission, this was well before the commission. So yes, so you can't belittle your achievements because they are not just your achievements. Right. So many people have contributed and put in their best to make, to realize those dreams, to make them take shape. So each one is equally important. And of course, like she said, celebrating everything and celebrating life. वो जो suicidal culture है, वो जो depression है, क्या कारण है कि गौरा अनपढ़ होके भी वहाँ तक पहुँची, और क्या कारण है कि एक बीटेक की लड़की ने सुसाइड सिर्फ इसलिए करे कि वो गेमिंग में थोड़ा पैसा हार गई, एंड शी डिड नॉट हैव द करेज to face her parents and tell them that I went wrong. So somewhere that parenting went wrong because उसको ये विश्वास ही नहीं था कि अगर वो अपनी गलती बता देगी, एक्सेप्ट, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. एंड दिस इज़ फॉर सो मैनी थिंग्स. मैं पेरेंट्स को, महिलाओं को, ऑल मेन ऑल्सो, दैट हम गलतियों को एक्सेप्ट करने की पावर दें बच्चों को, जब हम उनकी गलती पे सुधार का दिशा ज्ञान दे सकें. और नो वाला कल्चर जो आपने खुद कहा, रोल मॉडल भी खुद हो. रो, वी हैव टू Right. लिव अप द वे Yeah. वी वांट देम टू बी, बिकॉज चिल्ड्रन इम्बाइब, Right. दे नेवर एक्सेप्ट कमांड्स, एंड आजकल तो बिल्कुल नहीं. सो सुरेखा जी, एक आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट्स वन मिथ अबाउट वुमेन लीडर्स यू विश यू कुड डिलीट फॉर एवर. आपके पहले वाले आंसर में इसका आंसर था, बट अब मैं स्पेसिफिकली इसको पूछना चाहूँगी कि एक मिथ वुमेन लीडर्स के बारे में जो आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहेंगी. जैसा वेणु जी ने बताया, एक चीज़ मुझे लगती है वाइल हेडिंग दिस इंस्टीट्यूशन, कि जब आप कहीं उसको हेड करते हैं किसी भी संस्थान को, तो एक मिथ जरूर होती है कि आपसे नहीं हो पाएगा. ये एक जनरल आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं उनसे होती है, और तुमसे ये ना हो आपको ऐसे पता लगती है कि जैसे आपने कोई स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले लिया, कहीं रिकवरी कर दी या कुछ गलत था उसको ठीक कर दिया, तो जो र्यूमर्स आपके कानों में पड़ती हैं वो ऐसी पड़ती हैं कि मैडम तो बहुत अच्छी हैं. ये मैडम का डिसीजन नहीं है, मैडम को रजिस्ट्रार ने भड़काया है. सो ये जो अच्छा वाला है, दिस अच्छा आई ऑलवेज कंसिडर एज इनकेपेबिलिटी. एडमिनिस्ट्रेटिवली द जनरल परसेप्शन इज कि आप अच्छे हो मने आप इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले ही नहीं सकते, भले ही आपने सही एक्शन लिया. तो ये पक्का है कि वुमन को टाइम लगता है अपने को प्रूफ करने में. जहाँ मेल उस कुर्सी को जिस दिन होल्ड करता है, उसी दिन से वो जैसा है उसके बारे में वो परसेप्शन थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बनने लगती है संस्थान में. एक वुमन को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमताओं को और अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूफ करने में अभी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा टाइम लगता है. ये मुझे लगता है कि वो जो मिथ है कि अगर उन्हें 2 साल लगे तो आपको 4 साल लगे, ये कहने में कि यू कैन हैंडल एवरीथिंग. एंड नाउ आई एम हैप्पी दैट एवरीवन थिंक्स कि शी कैन हैंडल इट. मैडम को दे दो, मैडम विल हैंडल इट, वो वे आउट निकाल लेंगे. सो दैट इज गुड थिंग. So Venu, I'm going to ask you 2 questions. So one is very funny. You wear many hats as lawyer, activist, writer. Which of these roles, according to you, shakes people up to the most? I will again echo with Geeta ji. I love the way I am. कुछ लोग मुझसे मेरी पर्सनालिटी से कई बारी ओवरवेलम हो जाते हैं. कुछ लोग कि अरे ज़्यादा बोल रही है. यहाँ कौन सा वाला सबसे ज़्यादा डराता है? आई थिंक कि ये कभी भी कुछ बोल देगी, किसी से पूछ लेगी. पर मैं एक चीज़ मैम की बातों से, सुरेखा जी की बातों से आगे बढ़ूंगी, और इवन मैम की, कि जब हम लोगों से ये पूछा जाता है कि ओ तुम यहाँ पहुँची, कैसे पहुँची, जो भी इतने हैट्स तुम वेयर करती हो, घर कैसे संभालती हो,
क्या हम ये सवाल कभी भी किसी पुरुष जो वहाँ बैठा है कभी भी पूछते हैं उससे? So true. नहीं पूछते. हाँ. जैसे कि Because हाँ. we are women are, I don't know biologically, genetically, मुझे इसका आंसर नहीं पता, but yes, we are better multitaskers. Yes. आदमी नहीं कर पाते वो, तो हम घर भी संभालते हैं, हम अपना बाहर की भी, गीता जी वेयर्स ब्रिलियंट हैट्स, सो इज मैं, मतलब हम लोग बहुत सारे क्षेत्र इकट्ठा संभाल लेते हैं, बट हमें कई बारी एक पीछे एक इनबिल्ट गिल्ट आता है. मैं आपको ऋचा शर्मा जी जो फेमस जर्नलिस्ट हैं उनकी एक बार उनके मुंह के कहे शब्द, वो बहुत अच्छी टीवी जर्नलिस्ट थी, पर उनका बच्चा एक बार बीमार हो गया और वो अपने न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते उनमें गिल्ट था, मेरा बच्चा, और वो पूरा उसका सब इंतज़ाम करके पहुंची, पर उनके बच्चे की गिल्ट सिर्फ माँ को है. फादर जब एक पुरुष जब घर से निकलता है उसके दिमाग में रहता है मेरा घर संभाल रहा है, वो मेरी जिस स्त्री से उसने शादी की है या जो उसकी माँ है वो संभाल रही है. पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं, पता नहीं क्यों हम लोग कब इस गिल्ट से बाहर निकलेंगे मुझे नहीं पता. कि मेरी एक सहेली ने एक बार कहा कि वो उसका बच्चा 2 महीने का हो गया था, तब इतनी लंबी छुट्टियां नहीं मिलती थी पोस्ट प्रेगनेंसी, तो कह रही कि सबसे पहला ये हुआ, अरे इतने छोटे बच्चों को छोड़कर तुम नौकरी पे आ गई. तो मैंने कहा उसके फादर से तो कभी किसी ने नहीं पूछा. कभी नहीं पूछता कोई. So my question, next question, this is the last question of the session, then we'll open for questions from audience. So Geeta ji, children's health and rights are the backbone of a nation's future. From your experience, what are the most urgent challenges India must tackle to protect its children, especially the girl child? So one is हमें हैव नॉट्स के अलावा हैव्स वालों पे भी फोकस करना होगा. यहाँ ज़्यादातर हैव्स वाले बैठे हैं, एंड आई फील इन दिस साइबर डिजिटल एंड गैजेट रिच वर्ल्ड, हैव्स वाले बच्चे बहुत अकेले हैं. उन्हें संभालना, थामना बहुत ज़रूरी है, और एक समाज की तरह कलेक्टिवली हम सबको सोचना होगा. बिकॉज हैव्स को हम बहुत छोटी उम्र में वो सब दिखा दे रहे हैं जो कंड्यूसिव नहीं है उस बच्चे के मनोभाव के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए वो एप्रोप्रिएट नहीं है. सो वन मैसेज फॉर ऑल द पॉलिसी मेकर्स, इफ एट ऑल इट गोज़ टू देम, इज़ दैट हैव्स के बारे में भी सोचना होगा. हैव नॉट्स को संभालने के लिए जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जितना भी मिशन वात्सल एंड सो मेनी अदर थिंग्स, the way he's taking care, right from Pariksha Ka Parv to to the sponsorship schemes and so many other things, I think we are doing a lot. But as women, हमें क्या करना होगा कि हमारा आने वाला कल सुधरा रहे. So one is give them time, give them that value system, give them, and as a mother, only we as mother and as teachers enjoy that privilege. टीचर कितना भी अच्छा मैथ्स पढ़ा दे, मेल टीचर, पर वो कंपैशन और एम्पैथी नहीं इंस्टिल कर सकता जो हमारी फीमेल टीचर हमारे पे कर सकती है. एक फीमेल एम्प्लॉय जो अपनी वर्कर्स के लिए एक एनवायरनमेंट ऑफ कंसर्न एंड केयर देती है. एक विमेन लेड जो भी विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर आप जो एक प्रभाव देखते हो. और एक वीनू ने छोटी सी बात कही थी कि मुझे नहीं मालूम क्यों, बट हम बायोलॉजिकली एम्पावर्ड हैं. So I will as a doctor like to answer this for everyone's benefit. Biologically अगर हमारे पास एक sick newborn आता है, similar indicators, तो हमें पता होता है कि अगर ये हमारा first question होता है कि लड़की है कि लड़का, because लड़की है तो survival chances ज़्यादा होते हैं, हमें fight करना है. because child rearing की वजह से survival के हमें ज़्यादा tools दे के प्रभु पैदा करता है. और दूसरा हमारा hypothalamus, the emotion center, the amygdala, which is the seat of culture, emotions and all that all round activity, वो females का ज़्यादा, इसलिए हमारे आंसू टपकते हैं जल्दी, जिसके लिए कभी कभी हमारा मजाक बनाया जाता है. और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम एम्पावर्ड तो पहले ही भगवान ने हमें एम्पावर करके भेजा है, बिकॉज ओनली विमेन कैन डिलीवर अ बेबी, गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ.
सो हम लोग तो एम्पावर्ड भगवान ने ही हमें करके भेजा And one तो more today's- myth, no, one more myth that I would like, जो बदलनी है, और वो है जो myth है, जो सच्चाई नहीं है, आदिकाल से भी सच्चाई नहीं है. It's not कि आज नहीं है, कि women do not help women rise. It's the women who let women rise. Most of the times. आप देखिए अगर बैच मीट हो 25 साल बाद 30 साल बाद तो लड़के क्या कंपटीशन में लगे होते हैं, मैंने इस बार की कार रही है, मेरा वो वाला घर है, मेरा इतना बड़ा है. लड़कियां एक दूसरे के दुख सुख ना, तेरा मियाँ तो कैसे, और तेरे बच्चे कैसे अभी हैं. हमारा नेक्स्ट सेशन चालू होने वाला है तो दूसरे लोग मुझे काफ़ी घूर रहे हैं तो आई हैव टू एंड दिस सेशन हेयर. जबकि संजीव जी हमें थोड़ा अगली बार ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा क्योंकि महिलाओं को बोलने का मौका मिलता है तो थोड़ा हाँ जी. तो नाउ वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन. प्लीज़ गिव माइक टू द जेंटलमैन. I'll just include one thing. Sorry sir. मैम ने जैसे बोला ना, कंपैशन, लॉयर्स जब आगे बढ़ी तो कंपैशन लेके आई जो डिसीजन मेकिंग में लिए. इवन इन द ब्यूरोक्रेसी जो फीमेल ब्यूरोक्रेट्स थे. अब इंदिरा गांधी को देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ जब उनके कोई डेलीगेट्स आते थे तो वो तब भी देखती थी कि टेबल कैसे ले हुआ है. बीइंग द प्राइम मिनिस्टर शी यूज्ड टू सी सच थिंग्स. सो ये एक कंपैशन नाम की जो चीज़ है ना, वो महिलाएं ला सकती है. बिल्कुल. सो गुड आफ्टरनून. मेरा नाम मनोज बर्थवाल है. मैं ओएनजीसी में काम करता था और मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आपका समाज सुन के मुझे लगा कि मुझे मर्दों के पक्ष को भी आपके सामने रखना चाहिए. जी. Sir, this was just not a male bashing session at all. No. I understand. हम एक्चुअली बहुत सारे प्रोग्राम कराते रहे हैं ओएनजीसी में भी, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर. मेरा ये मानना है कि लेडीज़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मर्दों का काफ़ी बड़ा हाथ है. इसलिए हम अब मैंने ये देखा कि जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे सिर्फ वुमेन रहेंगी. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका रास्ता रोकने के लिए तो आदमी लोग हैं. तो इसलिए हम हमेशा बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने. धन्यवाद. अब अगली बात जो मैं कह रहा हूँ वो दूसरी है. वो ये है कि जो मल्टीटास्किंग की बात होती है उससे मुझे थोड़ा सा मतलब मैं कुछ उससे अपोज करना चाहता हूँ या मैं उससे सहमत नहीं हूँ. मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि हम लोग भी मल्टीटास्किंग करते हैं. मैं एज ए फादर, मेरा जो बच्चा हुआ, मैं दूध पिलाता था उसको, मैं उसकी पॉटी भी साफ करता था, मैं सब कुछ करता था. मैं अपनी वाइफ को गाड़ी से ले जाता हूँ ड्रॉप करने के लिए. It's a matter of percentages. मैं बायोलॉजिकली इसका आंसर अगर करूं मुझे बात तो तो हम पूरी करने दीजिए. हम मुझे टेक्निकली अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको जी, पूरा कर बिल्कुल, लेने बिल्कुल, दीजिए. हाँ. फिर आप कह लीजिएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक धारणा बनी हुई है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ लेडीज़ कर सकती हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ. मैं ये मानता हूँ कि आज के जो प्रबुद्ध मर्द हैं और जो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं वो भी उतना ही काम कर रहे हैं. No, let's clap for बिल्कुल, those. Let's बिल्कुल, clap for बिल्कुल, those sir. Very and nice. totally in agreement, not defying whatever you said. I just said that biologically ऐसा मानते हैं हम. मैडम ने कहा ना कि अभी टेक्निकल क्षेत्र में हम कितने आगे हैं. मैडम क्यूरी ने कब वो आविष्कार कर दिए थे. सो वो नहीं है, बट टेक्निकली जब हम बायोलॉजिकली डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि गर्ल्स हैव लेस टेक्निकल ब्रेन्स एंड मोर इमोशनल ब्रेन्स. ऐसा बायोलॉजिकल है. हाँ जी. I have a question, but not one, three. You can answer it precisely. The very first question is to Veenu ma'am. Ma'am, when we say women are multitaskers, are we genuinely appreciating their ability or normalizing the unfair expectation that they must manage career, home, childcare, and emotional labor all at once in a society where men are rarely expected to multitask? Does this label celebrate women or silently overburden them? Number two, when we say behind every successful woman there are her parents, do we risk reducing empowerment to a matter of personal upbringing while ignoring how institutions, governments, and social system either enable or obstruct women's progress in a society where access to education, safety, and opportunity are still unequal? Can parental support alone overcome structural discrimination? Number three. Sorry. When last. When we may not be able to answer all the questions. I so just want to share. I want her share. to Yes. start answering because next But I session just has want to to share start. the
question only. When we repeatedly describe women as embodiment of divinity, as Lakshmi, Saraswati, or Durga, are we really celebrating their power? Are we, or are we creating impossible ideal that ordinary women can never live up to? Thus, still divine pedestals subtly strip women of their right to be human, flawed, emotion, and free, and thus reinforce a cultural where being pure or sacrificial is valued more than being independent or assertive. Thank you. So I think all your questions are, I mean, it's a little short essay on what is wrong and why women could not make it to the front line. But structure की जहाँ तक आपने बात करी, अभी हम लोग के पास टाइम कम था. So we said now is the time. Our Prime Minister is saying women-led एंटरप्रूनरशिप. वो कह नहीं रहे कि औरतों को एम्पावर करो या औरतों को नौकरी दो. वो कह रहे हैं औरतों का एंटरप्राइज हो. दैट इज गोइंग टू बी 47 मिशन. सो वन इज स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं. पहले कुछ कमियां थी, सुधार हो रहा है. जो आपने कहा कि देवी बना के टांग देते, टू कट शॉर्ट द होल थिंग दैट यू सेड, कि जब हम देवी बना के उसको पूजनीय बना के क्या उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या उसको कह रहे हैं कि बस तू टंगी रहे और मुस्कराती रहे, कुछ मांगना मत, यू नो, लाइक एज अ पिक्चर यू डोंट आस्क फॉर एनीथिंग. सो येस, फॉर अ वाइल ऐसा हुआ, बट ऐसा हमेशा से नहीं था, आदिकाल से नहीं था और अब नहीं हो रहा है. बट जो मैडम ने एक बात कही थी कि अपनी महिलाओं को सिर्फ बार बार ये अपनी बच्चियों को ये मैसेज देके कि तुम दीवार पे टंगने के लिए नहीं हो, तुम त्याग की देवी नहीं हो, तुमने बराबरी करनी है. हम समाज को तोड़ने का काम ना करें. समाज जैसा पहले था, पावर भी थी, लेकिन साथ में सबको लेके चलने की जो क्षमता है उसका विकास करना आवश्यक है. ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. अगर Thank you so much. हम इमोशनल है ना, हम इमोशनल है, तो We अगर can, एटलीस्ट talk to you नौकरी when- से आकर while we रोटी come पका there. दी. The session is ended. हाँ, So, पर अगर thank नौकरी you से so आकर much. रोटी पका दी तो एटलीस्ट कोई थैंक यू कह दे. बस इतना सिखाना जरूरी है. Thank you so लड़कों को. much, Surekha ji. Thank you so much, Venu. Thank you, Dr. Geeta ji.